everyone, welcome to Learners Academy. So I'm back again with another video that is on the topic internal rate of return method, which is a part of financial management course. I've already covered various topics on capital budgeting techniques. This internal rate of return method is a part of capital budgeting techniques, and I've already covered people who are new and who don't know that I've already covered traditional methods, that is payback period method and accounting rate of return method. In discounting methods, I've covered net present value method. I've also covered profitability index method. Today I'll be covering internal rate of return method. So I would request you all that who are not clear of the concept of net present value method. So it's very important that before proceeding to this internal rate of return method, it's very important that you have a clear concept of net present value method. So the link is given in the description box below. You can refer to that net present value method as well, and you should also refer to the video of time value of money, because it is the basic concept that is very much important for having a clear cut idea of internal rate of return method, profitability index method. So okay, and before proceeding further, I would request you all that if you guys are new to my channel, new to Learners Academy, then please subscribe to my channel and share this video with your friends so that they can also get the help. And if you are really finding my videos helpful, if you are finding this content helpful, then just like the video and let me know in the comment section कैसी लगी आपको video, because we uh, we make so much of efforts for bringing out the best of content and for you guys. And the other thing is that बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं एंड इफ़ यू कमेंट, तो हमें अच्छा लगता है ये जानकर कि हमने जो भी एफर्ट्स डाले हैं वो आपको उसका मतलब वो उसका आउटपुट हमें मिल रहा है. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. लेट्स स्टार्ट today's topic, that is internal rate of return method. So we'll be starting with IRR method. What is IRR method? So as I've already mentioned, that is, it is very important that if you are not clear with what is NPV, so first of all you should have a clear idea of what is NPV, and the link is given in the description box of the video that I've already made on NPV, so you can refer to that video. Now we'll be covering IRR. What is IRR? See, it is defined as the discount rate. It is defined as the discount rate which makes its NPV equals to zero. ठीक है, ये एक ऐसा डिस्काउंट रेट है जिसे अप्लाई करने से आपका एनपीवी जीरो हो जाता है. ठीक है. नाउ व्हाट इज एनपीवी? एनपीवी आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा है तो इट इज इक्वल टू टोटल कैश इनफ्लोज, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कैश इनफ्लोज. प्रेजेंट वैल्यू क्यों? क्योंकि इट कंसिडर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. So present value of total cash inflows minus present value of total cash outflows is NPV. ठीक है. तो अगर NPV जीरो हो जाता है, then what does it mean? कि present value of total cash inflows is equal to present value of total cash outflows, right? मतलब कि आप जो NPV पे मतलब आप जो रेट लगा रहे हो उससे क्या हो रहा है, हमारा NPV जो है वो इक्वल्स टू जीरो हो रहा है. ऑल राइट, इतना आपको क्लियर हो गया. देखिए, एनपीवी का मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ. एनपीवी का फॉर्मूला क्या होता है? एक तो आपका हो गया टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कैश आउटफ्लोज. ठीक है, कैश आउटफ्लोज. अब इसको इस फॉर्म में अगर हम लोग लिखें तो सी एन डिवाइडेड बाय 1 + आई जो भी हमने डिस्काउंट रेट लगाया था, रेज टू द पावर n, दैट इज द टाइम. नाउ इस केस में क्या हो रहा है कि अगर हम लोग आईआरआर की बात कर रहे हैं तो उस केस में एनपीवी इज इक्वल टू जीरो. तो जो हम लोग ये रेट लगा रहे हैं, दैट मीन्स जो आईआरआर, ये आईआरआर अगर एनपीवी जीरो है, दैट मीन्स इट इज द आईआरआर, द रेट दैट इज अप्लाइड इन केस ऑफ दिस फॉर्मूला. ओके, आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा. अब आगे बढ़ते हैं. It is the discount rate which equates the present value of cash inflows to the present value of cash outflows. तो ये एक ऐसा discount rate है which makes the present value of cash inflows equals to present value of cash outflows. So it equates both the things, that is cash inflows and cash outflows. Now, if you are asked in UGC NET or your MCQs in examination की
आईआरआर का दूसरा नाम क्या है? आप क्या बताओगे? यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो ये चार नाम है, ये आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। सी मुझे ऐसा लगता है कि वेन एवर वी आर वॉचिंग एनी वीडियो, से फॉर एग्जाम्पल आप मेरी वीडियो ना, मतलब मेरी एजुकेशन वीडियो भी देखते हैं, साथ में अगर आप दूसरी वीडियोस भी रेफर करते हैं या आप क्लासरूम में भी बैठते हैं, तो इट्स जस्ट एन इम्पॉर्टेंट टिप कि आप नोटबुक अपने साथ में ज़रूर रखिए। वॉट एवर पॉइंट्स यू आर फाइंडिंग इट हेल्पफुल, आप ज़रूर उसे नोट डाउन करिए, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड हैबिट। बिकॉज होता क्या है ना, वेन वी डोंट हैव टाइम कि हम लोग बुक को रेफर कर पाए उस टाइम पे, तो हम लोग जब नोटबुक देखते हैं, जो भी हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, अगर हम लोग उसे गो थ्रू कर लेते हैं, तब भी हमें चीज़ें बहुत जल्दी से याद आ जाती हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गाइज मेक अ नोटबुक। अब आगे बात करते हैं। आईआरआर क्या होता है? इट इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन द इनिशियल कैपिटल आउटले, जो भी हम आउटले करते हैं या जो भी हमारे फंड्स आउटफ्लो हो रहे हैं, और उससे हमें क्या रिटर्न्स मिलने वाले हैं। जो भी हमें रिटर्न्स या इनफ्लोज होने वाले हैं, उसके ऊपर बहुत पूरा डिपेंड करता है, एंड उसके बेसिस पे हम लोग उस आईआरआर को फाइंड आउट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। जो भी हमें रिटर्न्स, हम लोग रिटर्न्स जो हमें मिलने वाले हैं, हम उसे वैल्यूएट करते हैं। अब इसका एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन क्राइटेरिया क्या है? के इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। के क्या है? इट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नाउ व्हाट हैपेंस इज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है कि हमने जो भी हमारी कैपिटल को सोर्स करने के लिए, फंड सोर्स करने के लिए जो भी हमारी कॉस्ट आई है, या जो भी हमने डिस्काउंट रेट या हर्डल रेट हमने सोचा हुआ है कि इस रेट तक हमें इस इतना हमें रिटर्न मिलना ही मिलना चाहिए, इतना हमें रिटर्न मिलना ही मिलना चाहिए। तो इफ इट इज ग्रेटर, इफ आईआरआर जो भी हमने कैलकुलेट किया है, दैट वील बी कैलकुलेटिंग इन आगे जाके। तो इफ आईआरआर इज ग्रेटर देन के, देन वील एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। अगर आईआरआर के से कम है, then we are gonna reject the project, and firm is indifferent in case of what? IRR is equal to K, and K is what? K is the cost of capital. अब हम आगे बात करते हैं कि अब इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखिए आईआरआर के केस में क्या होता है ना, अब हमारे पास जो इनफ्लोज आ रहे हैं वो दो फॉर्म में आते हैं। वो किस फॉर्म में आते हैं? एक तो हमारा एन्युटी, एन्युटी का मतलब क्या हुआ? जो हमारे इनफ्लोज आ रहे हैं यूनिफॉर्म, और एक आ रहा है हमारा मिक्स्ड या डिफरेंशियल। अब एन्युटी के केस में क्या होता है, मतलब कि आपने मान लीजिए 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करी, और वो आपने 0 ईयर में करी। अब आपको आने वाले सब्सिक्वेंट 5 ईयर्स में जो इनफ्लो आने वाला है, दैट इज सेम। मतलब कि आने वाले 5 साल में आपको 50,000 से फॉर एग्जाम्पल इनफ्लो आएगा, तो आपको हर साल 50,000 ही इनफ्लो आ रहा है, आपको अलग अलग नहीं आ रहा है। उसे हम लोग एन्युटी बोलते हैं। इस केस में हम लोग आगे जाके कैलकुलेशन देखते हैं कि एन्युटी के केस में हमें कैसे कैलकुलेट करना है। नाउ लेट्स कम टू द मिक्स स्ट्रीम ऑफ या डिफरेंशियल कैश फ्लोज। इस केस में क्या होता है कि आपने 1 लाख का फॉर एग्जाम्पल पहले साल में इन्वेस्टमेंट किया, एंड 1 2 3 4 5 जो भी आपके 5 साल है या 4 साल है, हर एक साल में आपको अलग अलग रिटर्न्स आ रहे हैं, डिफरेंट रिटर्न्स, यू आर गेटिंग डिफरेंट रिटर्न्स। उस केस में क्या होता है? देर इज डिफरेंशियल कैश फ्लोज। अब इस केस में क्या है कि आईआरआर फाइंड आउट करना एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है। हम लोग उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं? बेस्ड ऑन द कैश इनफ्लोज दैट वी आर गोइंग टू गेट इन फ्यूचर। तो ये हम लोग रिटर्न, और हमें क्या मेन हमारा कंसर्न क्या है कि हमें ऐसा रिटर्न फाइंड आउट करना है जिससे कि हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। दैट मीन्स एनपीवी शुड बी इक्वल टू 0। नाउ इस केस में हम लोग क्या करते हैं? एक ट्रायल एंड एरर मेथड की मदद से, ट्रायल एंड एरर मेथड की मदद से हम लोग आईआरआर को कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? विद द यूज ऑफ ट्रायल एंड एरर मेथड, या आप बोल लीजिए इंटरपोलेशन मेथड। अब इस केस में क्या है? देयर इज अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग आईआरआर। अब उसे हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? फर्स्ट गो थ्रू द फॉर्मूला। देखिए लोअर रेट, ठीक है, लोअर रेट हुआ, ये हमारा लोअर रेट या बेस रेट जो भी हमारे होंगे, दो रेट्स हमने लिए। इस केस में क्या होता है कि जैसे हम लोग दो रेट्स लेते हैं, दो रेट्स लेते हैं, या एक रेंज होती है हमारी, उस बेसिस पे हम लोग आईआरआर फाइंड आउट करते हैं। तो वो कैसे करेंगे मैं आपको समझाती हूँ।
देखिए लोअर रेट हो गया हमारा जो भी हम लोगों ने लिया फॉर्मूला में, प्लस एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट। ठीक है, दो रेट्स है हमारे पास, एक लोअर रेट है, क्या हायर रेट है, उन दोनों का डिफरेंस हो गया इनटू हायर रेट माइनस लोअर रेट। ये दिस इज अवर फॉर्मूला। अब आगे बात करते हैं, ये हम लोग इलस्ट्रेशन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे तभी हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। सी हमें क्या बोला जा रहा है, कैलकुलेट आईआरआर फॉर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख। हमने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करी विच इज यील्डिंग द फॉलोइंग कैश फ्लोज, जैसे कि 30,000 हमें मिल रहा है, सेकेंड ईयर में हमें 30,000 मिल रहा है, थर्ड ईयर में हमें 40,000 मिल रहा है, 45,000 हमें फोर्थ ईयर में मिल रहा है। इस केस में हमें एनपीवी नहीं कैलकुलेट करनी है, इस केस में हमें आईआरआर कैलकुलेट करना है, राइट। आपको याद होगा कि हमने एनपीवी कैलकुलेट किया था, उसमें हमें डिस्काउंट रेट दिया जाता था, बट इस केस में हमें कोई भी डिस्काउंट रेट नहीं दिया है। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द रेट, और रेट क्या फाइंड आउट करना है, जिसपे एनपीवी शुड बी इक्वल्स टू 0। तो हम लोग उस फॉर्मूला को लगाएंगे, बट कैसे लगाएंगे देखिए, उसको करने से पहले हमें क्या करना है, एक रेट फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, एक रेट फाइंड आउट कर लेना है जिसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फैक्टर। इसे हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फैक्टर। इसमें क्या होता है कि जो भी आपका इनिशियल कैश आउटले हुआ, मतलब जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करी, अपॉन एवरेज कैश इनफ्लोज, मतलब कि जो भी आपकी इनफ्लोज हुई, इसमें हम लोग क्या मान रहे हैं, दिस इज फेक एन्युटी। हम लोग एन्युटी इसे कंसिडर कर रहे हैं, मान रहे हैं, वी आर जस्ट अज्यूमिंग इट। एन्युटी मतलब क्या हुआ कि जो भी हमें सब्सिक्वेंट ईयर्स में इनफ्लो आने वाला है दैट इज इक्वल, वो इक्वल है, वो सेम है, हम लोग इसे ऐसा मान रहे हैं। ठीक है, तो एवरेज कैश इनफ्लोज किया हम लोगों ने। अब एवरेज क्या इन्वेस्टमेंट फैक्टर हमें कैसे, सी व्हाट व्हाई वी आर डूइंग दिस इज बिकॉज एक लोअर रेट हमें पता करना है, एक हायर रेट पता करना है, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अज्यूम एनी रेट। सो इन ऑर्डर कि हमें भाई पता चले कि हमें कौन सा रेट अज्यूम करना है, तो हमें थोड़ी सी तो हिंट चाहिए, हमें थोड़ा सा तो एक क्राइटेरिया चाहिए। तो वो क्राइटेरिया हमें कैसे मिलेगा, इन्वेस्टमेंट फैक्टर के थ्रू। तो हमने क्या किया, इनिशियल कैश आउटले जो हमारा हुआ है अपॉन एवरेज कैश इनफ्लोज लिया। तो एवरेज कैश इनफ्लोज हमारा क्या हुआ, जो भी हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज आए थे अपॉन 4 किया, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, एंड वी आर गेटिंग 36,250। सॉरी, आज एक्चुअली मेरा थोड़ा गला खराब है। सी ये 4 साल में हमें हमारे इनफ्लोज आए, तो हम लोगों ने क्या किया, 30,000 30,000 40,000 45,000 अपॉन 4 कर दिया, वील गेट एवरेज कैश इनफ्लोज जो हमें मिल रहे हैं। नाउ इन्वेस्टमेंट फैक्टर हमारा कैसे आएगा, इन्वेस्टमेंट फैक्टर जो हमारा कैश आउटले हुआ है, दैट इज इन्वेस्टमेंट जो आपने करी है, अपॉन 36,250, ये आपका हो गया एवरेज कैश इनफ्लोज। इसको हमें मिला, तो इन्वेस्टमेंट फैक्टर हमारा क्या हो गया, 2.758। दिस इज समथिंग दैट वी हैव गॉट इन्वेस्टमेंट फैक्टर। तो इसके बेसिस पे हमें पे बैक पीरियड मेथड, पे बैक पीरियड हमें पता चल रहा है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि प्रेजेंट वैल्यू हमारा फैक्टर क्या होगा ऑन द बेसिस ऑफ एन्युटी। ठीक है, ये हम फाइंड आउट करेंगे। तो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एन्युटी टेबल से व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि ये जो हमें इन्वेस्टमेंट फैक्टर मिला है वो किस रेंज में आता है। नाउ अगर हम लोग ये एन्युटी टेबल को रेफर करते हैं, तो सी व्हाट वी आर गेटिंग इज, हमारा क्या आ रहा है इसमें, 2.758 आ रहा है, राइट। तो 2.758 दैट टू फॉर 4 ईयर्स, तो ये हमारा एन्युटी टेबल है। तो 4 ईयर्स के लिए हमारा क्या आ रहा है इसमें, 2.748, ये हमारा इस रेंज में जा रहा है। सी हमारा ये इस रेंज में जा रहा है, 17 एंड 16 के बीच में आ रहा है, 2.748, राइट। तो हम लोगों ने क्या किए, दो रेट्स ले लिए, एक 17% ले लिया, एक 16% ले लिया। ये मैं आपकी रेफरेंस के लिए बता रही हूँ, ये आपको एन्युटी टेबल आपकी बुक के पीछे दिया होता है, तो आप उसे रेफर करिएगा, ये आपके रेफरेंस के लिए मैंने आपको बताया है। ओके, तो हमने दो रेट्स ले लिए, एक तो 16% ले लिया, एक 17% ले लिया। अब किसी भी एक रेट को लेकर हम लोग एनपीवी निकालेंगे। तो से फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन 16% ऑफ रेट,
नाउ व्हाट इज गोना हैपन इज कि हम लोग उसके बेसिस पे, जैसे हम लोग डिस्काउंटिंग रेट पे एनपीवी कैलकुलेट करते थे, उसी के बेसिस पे वी आर गोना कैलकुलेट एनपीवी एट 16%। एंड इसको डिस्काउंटिंग या इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने बताया था 1/1 प्लस आर रेज टू द पावर एन। तो ये हमारा 16% पे हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग देखते हैं। कैश इनफ्लोज हमारे 1 लाख है, कैश आउटफ्लो हमारा 1 लाख है, एंड बाकी हमारे कैश इनफ्लोज है। एंड अब हमें कैलकुलेट करना है दिस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। This I have already told you ki how to calculate this present value factor. And now at 16%, how you have to calculate 1 divided by 1.16 equals to 0.862। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट ईयर का। इक्वल्स टू आप करोगे तो ये आपका सेकेंड ईयर का हो जाएगा 743। फिर से आप इक्वल्स टू करते हो तो आपको थर्ड ईयर का मिल जाएगा, एंड फिर इक्वल टू करते हो आप तो 0.552। दिस यू विल बी गेटिंग फॉर फोर्थ ईयर। Then when you will be multiplying these values, you will get the present value of all the cash inflows in all the years। ठीक है, अब आप इसका टोटल करते हो। ठीक है, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज है, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउट इनफ्लोज आपको मिल रही है। नाउ अब आप एनपीवी कैसे फाइंड आउट करोगे, एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, राइट। तो what is happening is इस केस में we are getting the negative NPV, we are getting negative NPV, that is 1 minus 1370 ब्रैकेट में लिखा है, that means it is negative। मतलब कि जो भी आपके टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज है वो 98,630 है, एंड आपका आउटले 1 लाख है। दैट मीन्स कि आपका लॉस हो रहा है, सो एनपीवी आपकी नेगेटिव में जा रही है, राइट। तो अब इस केस में क्या हो रहा है कि आपको एक दूसरा रेट पता करना है। दूसरा रेट पता करना है तो इस केस में क्या है कि वी हैव टू स्लैब्स। हमने देखा कि एक 16% था, एक 17% था, तो इस रेंज में आना चाहिए। लेकिन हम लोगों को 16% पे ही नेगेटिव एनपीवी मिल रहा है, हम लोगों को 16% पे ही नेगेटिव एनपीवी मिल रहा है। सो वी नीड अनदर एनपीवी जो कि पॉजिटिव हो। नेगेटिव एनपीवी हमें मिल गया, नाउ वी नीड अ पॉजिटिव एनपीवी, राइट। तो उस केस में क्या होगा, टू गेट द पॉजिटिव एनपीवी, उस केस में आप क्या करोगे, आप लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाओगे। ठीक है, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाओगे। दैट इंटरेस्ट यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड एट 16%, एंड नाउ द इंटरेस्ट रेट दैट यू आर गोना अप्लाई, इट शुड बी लेस देन 16% टू गेट द पॉजिटिव एनपीवी, राइट। सो हम लोग इसमें अज्यूम कर रहे हैं, वी आर अज्यूमिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट वी आर गोना अप्लाई। सो ये एक ट्रायल एंड एरर मेथड है, ओके। सो वी आर अज्यूमिंग द इंटरेस्ट रेट, तो वी आर टेकिंग द 2% ऑफ डिफरेंस, दैट इज 16% हमने पहले लगाया था, नाउ वी विल बी टेकिंग 14%। से फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग 14%। तो अब एनपीवी एट 14% पे वी विल बी कैलकुलेटिंग। सो 14% पे हमारा क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हो जाएगा हमारा 1 divided by 1.14, that is equivalent to 8.877। अगेन हमारा 7.769 आ गया, 0.675 आ गया। अब हम लोग इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे। से फॉर एग्जाम्पल 30,000 किया हमने इंटू 0.877, तो ये हमारा आ गया 26,310। 1 लाख हमारी क्या है, इन्वेस्टमेंट है, सो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1 इटसेल्फ। इसकी कोई प्रेजेंट वैल्यू नहीं होगी, वही होगी 1 लाख होगी उसी साल में। ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है। अब हम लोग सबका टोटल करेंगे, सो व्हाट वील बी गेटिंग नाउ इज 103020। ठीक है, 103020 ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू है टोटल कैश इनफ्लोज की। ओके, दिस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कैश इनफ्लोज। नाउ एनपीवी क्या हो गया, प्रेजेंट वैल्यू टोटल कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कैश आउटफ्लोज हो गया। एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कैश इनफ्लोज यू आर गेटिंग इज 103020 माइनस 1 लाख जो आपका आउटफ्लो था is equal to 3020। Now you are getting NPV at 14%, which is 3020, which is positive NPV, and NPV at 16% आपको क्या मिला था, 1370, that is minus NPV। तो हम लोग ये सारी वैल्यूज को फॉर्मूला में डाल देते हैं। हमें एक लोअर रेट चाहिए था, वो हमें मिल गया, हायर रेट मिल गया। एनपीवी लोअर रेट पे क्या है, एनपीवी हायर रेट पे क्या है, वो भी हमें मिल गया। नाउ वी नीड द डिफरेंस, तो हम लोग ये सारी वैल्यूज लिखते हैं। लोअर रेट हमने क्या लिया था 14%, प्लस एनपीवी एट लोअर रेट आपका आया था 3020,
अपॉन एनपीवी एट लोअर रेट 3020 प्लस एन प्लस कैसे आया देखिए, माइनस एनपीवी एट हायर रेट, ठीक है। तो हायर रेट पे जो हमें एनपीवी मिला था इट वाज इन मतलब नेगेटिव था, इट वाज नेगेटिव, राइट, इट वाज -1370। तो ये 3020 आपने लिखा माइनस -1370, तो ये क्या हो जाएगा 3020 प्लस 1370, राइट, माइनस माइनस आपने किया प्लस हो गया, इनटू हायर रेट माइनस लोअर रेट। हायर रेट हमने क्या लिया था 16% लिया था, माइनस हमने लोअर रेट क्या लिया है 14%, तो इसका डिफरेंस हो गया हमारा 2। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, सी हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे, 3020 एंड 3020 प्लस 1370, ठीक है। ये हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 14 प्लस 3020 अपॉन 4390, ठीक है, इंटू 2। अब ये हमारा क्या आ जाता है 14 प्लस 3020 अपॉन 4390 आप करते हो, दैट इज इक्विवेलेंट टू 0.688 इंटू 2। तो अब आप 0.688 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज इक्वल टू 1.376। 1.376, तो 14 प्लस 1.376 आपने कर दिया। नाउ 14 प्लस 1.376 आपने किया, तो यू आर गेटिंग IRR ऑफ 15.376, और 15.376। सो ये हमारा एक मेथड था। हम लोग IRR कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम लोग एक फॉर्मूला लेंगे, उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट फैक्टर यू विल बी फाइंडिंग एक लोअर रेट एंड एक हायर रेट। हायर रेट और लोअर रेट आपको मिल जाता है, देन यू हैव टू कैलकुलेट द एनपीवी एट लोअर रेट, एनपीवी एट हायर रेट, ठीक है। उसके बेसिस पे हम लोग जब सारी वैल्यूज इस फॉर्मूला के अंदर डाल देते हैं, देन वी गेट व्हाट, we get IRR. So what is IRR? What is IRR? Which equates present value of cash inflows to present value of cash outflows. Now guys, I want to tell you all one thing कि इसमें annuity भी होता है, that I have already explained, but if you want me to take an illustration on the basis of annuity for the calculation of IRR, let me know in the comment section below. आपकी जैसे request आएगी, if you want me कि मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊं, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी फॉर श्योर। एंड आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, एंड इफ यू गाइज लाइक द वीडियो गिव इट अ थम्स अप, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल देन सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग लर्नर्स अकेडमी।